So welcome dear students. This is the continuation of the current unit that we are studying right now, linear differential equation. Till date we have learned general solution, out of which consists of complementary function and particular integral. We have particularly studied general method for finding out particular integral. After that we have gone through the methods that are shortcut methods for particular integral. We have also studied in the previous lecture we have also studied the special cases for particular integral, which are apart from the 5 cases that we have learned. Now we are going to see the method of variation of parameter, finding out the solution of a differential equation by method of variation of parameter. This is very much important, and mind it well that you are going to face one problem in the view of the examination. You are going to face one problem compulsory on this topic. If we are going to distribute our entire study into 2 subsections, question 1 and question 2, then you will have to face one problem on this. It is clear. So we are going to start now. Let us start. So my dear students, what is linear differential equation? That all you know. What is solving the linear differential equation by method of variation parameter? That we are going to see now. Suppose a differential equation is with you. Let us consider whatever kind of differential equation. Let us consider a differential equation that we have studied till now. अब तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखा उसमें एक चीज क्लियर थी बच्चों, या तो आपका सॉल्यूशन, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूं सेकंड ऑर्डर वाला, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों ध्यान से देखना, या तो आपका सॉल्यूशन CF, माफ करना, CF इक्वल टू C1 e का पावर AX प्लस C2 e का पावर BX, ऐसा था। नहीं तो आपका सॉल्यूशन रिपीटेड रूट वाला था, नहीं तो जस्ट मिनट बच्चों, थोड़ी सी स्पेल आउट गलती हो गई है। या तो आपका सॉल्यूशन ऐसा था, नहीं तो रिपीटेड रूट वाला था, नहीं तो रिपीटेड रूट हो गया, इमेजिनरी रूट था। नहीं तो क्या हो सकता है, जस्ट सी, मैं यहां पर ही चीज मेंशन कर रहा हूं, इमेजिनरी रूट वाला था, नहीं तो इमेजिनरी में रिपीटेड था। कहने का मतलब है कि मैं स्ट्रक्चर को अगर रिपीटेड रूट हुआ कैसा भी हुआ तो मैं
मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखना बच्चों, मैं रिपीटेड रूट हुआ या डिफरेंशिएट डिफरेंट रूट हुआ तो भी इस फॉर्मेट में मैं उसको लिख सकता हूं। अगर वो इमेजिनरी रूट हो तो सी वेयर कैसा लिख रहा हूं मैं, सी एफ इक्वल टू ई का पावर अल्फा एक्स ए एक्स लिखता हूं मैं, इंटू C1 cos bx। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, यानी मैंने सिर्फ एक चीज कर दी, अल्फा एंड बीटा के लिए ए एंड बी यूज कर दिया, और दूसरा एक काम कर दिया, जो बाहर वाला अल्फा एक्स होता है उसको अंदर ले लिया, प्लस नीचे लिख रहा हूं बच्चों इसका, ध्यान से देखना, e का पावर ax इंटू C2 cos C2 sin बीटा एक्स। यानी कहने का मतलब ये कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी जरा ध्यान से देखना कि C1 और C2 को मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया, देखना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, ये C1 और C2 को मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया, तो ये e का पावर अल्फा एक्स यानी ए एक्स और ये बी एक्स और ये और ये और ये, यानी मैंने किसको भूल गया, माफ करना जरा सा मैं इसको फिर से रीडू करता हूं, मैंने कुछ ज्यादा ही अंडरलाइन कर दिया, ये और ये C1 और C2 छोड़ दिया मैंने। सो सी व्हाट इट कैन बी सीन, यानी बाय हुक और क्रुक, मैं कहना क्या चाहता हूं जरा ध्यान से सुनना, बाय हुक और क्रुक द एंटायर इक्वेशन कैन बी रिटन एज C1 e का पावर ax C2 e का पावर bx C1y1 C2 y2 C1 into e का पावर ax cos bx y1 C2 into e का पावर ax sin bx y2। that means ultimately what I am seeing, if my equation is second degree, second or particularly second order differential equation, then that second order differential equation can be, CF of that second order differential equation can be written in the form C1 into function of x plus C2 into function of x। C यहां पर क्या है, C1 function of x, C2 function of x। मैं पूरा अंडू कर रहा हूं सो दैट ये आसानी से आप इसको समझ सके, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, C1 function of x, C2 function of x। That means this can be written, clear all? Once this can be written, that means y1 and y2 are functions of x। If this is clear, then pi can be written as, this is the formula of pi, where pi can be written as pi equal to u into y1 plus v into y2। What is u into y1, v into y2? Where u and v are calculated by, ध्यान से देखना, u equal to minus into integration of y2 divided by w into capital X into dx, v equal to integration of y1 into y1 divided by w into capital X into dx। Now the $1,000,000 question is, what is w? This w is nothing but Wronskian. This w is nothing but Wronskian, and this has been calculated by taking the determinant of y1 y2 and derivative of y1 y2। See carefully, y1 y2 and derivative of y1 y2, mind it clearly that if your equation, given differential equation, is given in the form of second order, then be it clear
that your determinant will be 2 by 2. If your differential equation is of third order, then your determinant will be 3 by 3. How that determinant can be taken away? How that W, V and W is taken into consideration, U and V are taken into consideration, everything is going to get clear. Have just some patience. So how we are going to see it? Once you are calculating value of U and V, just substitute that value of U and V into Pi, and your CF plus Pi will be your complete solution. Okay. So this is the case of second order differential equation. What is the case of third order differential equation? Let me check. What is third order differential equation? See, CF equal to C1y1 plus C2y2 plus C3y3. We are developing the same theory on the basis of previous theory. यानी हम सिर्फ कर इतना रहे हैं कि प्रीवियस थ्योरी में हमने जो लिया था उसी को हम सेकंड थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं. अब उसको एक्सप्लेनेशन यानी कौन सी वे में एक्सप्लेन करेंगे? वो एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा बच्चों, ध्यान से देखना मेरी तरफ. वो एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जैसा हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कंस्ट्रक्ट किया वैसा ही हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे. अब ध्यान से देखना, क्लियर कट. y1, y2, y3 are functions of x as if y1 and y2 were functions of x. यानी जैसे y1 और y2 functions of x रहते थे वैसे y1, y2 and y3 are functions of x. Understood? Next, अब ये जानते हैं तो सब चीज मैं पहले ये भी क्लियर कर दूं. Then w is equal to 3 by 3 बोला था मैंने. So y1, y2, y3, y1 dash, y2 dash, y3 dash, y1 डबल डैश, y2 डबल डैश, y3 डबल डैश. अब ये ऐसी चीज लिख दी. ऐसी चीज लिखने के बाद क्या करूं, कैसा लिखूं, कैसा लेना चाहिए? तो ध्यान से देखना क्या है. Where Pi is equal to U into y1 plus V into y2 plus W लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, यम लिख सकते हो, चलेगा. यम लिखा तो भी चलेगा क्योंकि U V W ऑलरेडी W हम लिख चुके हैं तो वो W नहीं लिख सकते. या दूसरा एक करेक्शन ये कर सकते हैं कि इसको स्मॉल w कंसिडर कर सकते हैं तो भी ये चीज सॉल्व हो जाएगी. स्मॉल w एंड कैपिटल W. बच्चों मैं क्लियर कर रहा हूं सो दैट मुझे आगे चीज समझाने के लिए आसान हो जाए. ध्यान से देखना, ये क्या है? ये u है इक्वल टू, देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ y2 y3 y2 डैश y3 डैश. मैं क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखना. डिटर्मिनेंट ऑफ y2 y3 y2 डैश y3 डैश. बच्चों मैं काम करता हूं, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं. यही है ना, यही है ना, पक्का ना? देखो वही है y2 y3 y2 डैश y3 डैश. व्हाट इज दिस? इस एलिमेंट का रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया तो ये डिटर्मिनेंट बचता है. क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं माइनर. यानी अब ध्यान से देखना, यानी मैं फार्मूला क्या बना रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं बच्चों. यहां पर फार्मूला क्या बना रहा हूं, यानी दिस कैन बी ट्रीटेड एज माइनर ऑफ, किसका माइनर? y1. ब्रैकेट कर रहा हूं बच्चों, समझने के लिए आसान जाएगा. ब्रैकेट y1 ऑफ किसका? डबल डैश. समझे मैं क्या कह रहा हूं? यानी y1 ऑफ डबल डैश का माइनर. ठीक है. अब v देखता हूं, v क्या है? y1 y3 y1 डैश y3 डैश y1 y3 y1. ध्यान से देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना. y1 y3 y1 डैश y3 डैश
अब ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, तो बचा क्या, y1 y3 y1 डैश y2 डैश। यानी क्या लिखूं, यहां पर मैं क्रिस्टल क्लियर क्या लिख सकता हूं, पहले तो अंडू कर लूं, यहां पर लिख सकता हूं माइनर ऑफ y2 डैश डैश डबल डैश y2 डबल डैश। समझे मैं क्या बोल रहा हूं आपको। अब उसी बेसिस पे तो अब मैं तीसरा वाला क्रिस्टल क्लियर बता सकता हूं, वो तो आप भी बता सकते हैं क्या होगा। वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, माइनर ऑफ y3 डबल डैश। समझ में आया ना, माइनर ऑफ y3 डबल डैश। यानी ये पूरा फॉर्मूला सेट है। अब अगर मेरा 4x4 मैट्रिसेस हुआ तो इसी वे से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अब मेरे लिए सिस्टम क्लियर है। हाँ तो क्लियर ये भी होगा, ये लिख तो दिया सर आपने, लेकिन ये कहाँ यहाँ से आया है, इसका कोरिलेशन इसके साथ कैसा है, तो यहां पर भी देखो, देखना जरा ध्यान से, क्या है y2, क्या है y2, y2 है मतलब किसका माइनर है, इसका माइनर है। यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनर ऑफ y1 डैश, y1 है तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनर ऑफ y2 डैश। यानी देखो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसी वे से माइनर ऑफ y1 डैश, सॉरी, माइनर ऑफ y1 डैश, और यहां पर लिख सकता हूं माइनर ऑफ y2 ब्रैकेट क्लोज डैश। समझे मैं क्या कह रहा हूं। यानी इस वे से अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं चीजें आराम से अंडरस्टैंड कर सकता हूं। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये समरी आपके सामने अवेलेबल है। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट यू शुड पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन एवरीथिंग। एवरीथिंग यू आपको लिख के लेना है सो दैट आपके नोट्स रेडीमेड तैयार होते जाएं। चीजें आइडेंटिफाई कीजिएगा, चीजें देख लीजिएगा, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी इट क्लियरली। नाउ सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग। इसको कैसा देखें, इसको देखना बड़ा आसान है। यानी जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो हमें ये पहला आइडेंटिफाई करना है। मैं समराइज कर रहा हूं बच्चों, तो ध्यान से देखें। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो पहली चीज हमें ये देखनी है कि क्या हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है। एक बार ये क्लियर हो गया, अगर सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो C1 Y1 C2 Y2 आएगा। इमीडिएट Y1 और Y2 आइडेंटिफाई करना है। एक काम करता हूं, मैं स्टेप्स ही लिख लेता हूं यहां पर, समझे। सो पहली स्टेप क्या करो, फर्स्ट आइडेंटिफाई y1 एंड y2, y1 एंड y2 आइडेंटिफाई करो। सेकंड y1 और y2 आइडेंटिफाई करने के बाद अब क्या करना है, आइडेंटिफाई तो कर लिया, क्या निकालना है, w निकालना है। समझे, w पहले निकाल लो। नंबर 3, pi इक्वल टू u y1 प्लस वी y2। फार्मूला लिखो u y1 प्लस वी y2। और चौथा फोर्थ, फाइंड u एंड v। क्या करो, u एंड v फाइंड आउट करो और वैल्यू उसकी वापस क्या कर दो, पुटअप कर दो। और लास्ट वाली चीज CF प्लस पी आई, जनरल सॉल्यूशन लिख दो, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दो CF एंड पी आई कैलकुलेट करने के बाद। इतना क्लियर हो गया हो तो अब मैं आगे जाता हूं प्रॉब्लम की तरफ। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है।
तो जितना हो सके उतना मैंने ये जो भी लिखवाया है ये जरा ध्यान से इसको एनालाइज करने का ट्राई करना, ठीक है। सो आई एम क्लियरिंग इट ऑल। अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम, अब ये पहला प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखो पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम है आपका d square plus 3d plus 2 operating on y, d square plus 3d plus 2 operating on y इक्वल टू, ध्यान से देखना, इक्वल टू e का पावर x, e का पावर x कहां पे है, यहां पर। यही प्रॉब्लम हम और एक अलग मेथड से भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व अलग मेथड से कहने का मतलब मेरा ये है कि हम ये प्रॉब्लम दोबारा फिर से देखेंगे दूसरा आरएचएस लेकर, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए और आप आराम से उसको देख सको। अब जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे सामने है तो मैं कैसे सॉल्व करूं उसको, बड़ा आसान है जी। मैं उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालूंगा और बाद में PI का देखेंगे क्या है क्या नहीं। पहला CF क्या है, CF ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करो, रूट निकालो, CF लिखो। ये टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी 2-3 बार सॉल्व कर चुके हैं। तो CF इज इक्वल टू C1 e का पावर -x एंड C2 e का पावर -2x, ये रहे रूट्स। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हो जाने के बाद अब PI फाइंड आउट करते हैं। तो PI इक्वल टू u इंटू y1 प्लस v इंटू y2, फॉर्मूला लिखा। अब u निकालना है, u निकालना है तो पहले u का फॉर्मूला लिखा, v का फॉर्मूला लिखा और w का फॉर्मूला लिखा। W पहले निकाला, W पहले निकाला मतलब y1 एंड y2 की वैल्यू क्या है, y1 इक्वल टू e का पावर -x, y2 इक्वल टू e का पावर -2x, y1 डैश y2 डैश, substituting the value of y1 dash and y2 dash, y1 y2 into the given equation, W is equal to, this is the formula, this is the substitution, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया आपका आंसर, यानी W इक्वल टू e का पावर -3x। अब कोई ये बोल सकता है कि सर ये प्रॉब्लम ऐसा ही सॉल्व करना है क्या, नहीं, ये y1 और y2 ऐसे ही है क्या, नहीं। आप एक काम कर सकते हो बच्चों, एज अ प्रैक्टिस, y1 क्या ले लेना, e का पावर -2x लिखना, y2 क्या लिखना, e का पावर -x लिखना, तो भी आंसर सेम आएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये साइन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, y1 और y2 इंटरचेंज करने हैं, y1 और y2 इंटरचेंज करने हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, y1 और y2 इंटरचेंज करने हैं, समझे, y1 और y2 इंटरचेंज करने हैं। ये मैं दूसरा बोल रहा हूं आप, यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि ये y1 और y2 अगर मैं इंटरचेंज करूं, यानी आपका फॉर्मूला CF ऐसा लिखूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल टू C1 e का पावर -2x प्लस C2 e का पावर -x, तो ये होगा y1 और ये होगा y2, समझे। तो y1 डैश अलग होगा और y2 डैश अलग होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, ये भी करोगे तो आंसर यही आएगा, फर्क सिर्फ प्लस माइनस में क्या होगा, चेंज हो सकता है। अंडरस्टूड, ये देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना, क्लियर कर रहा हूं मैं सब चीज, सबको समझ में आ गया। आगे PI इक्वल टू -y फार्मूला, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते हैं बच्चों, हम इसको इंडिपेंडेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बाद में वहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ में आया?
हम इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करेंगे। इंडिपेंडेंट कैलकुलेट करने के बाद ही हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट इसमें इंडिपेंडेंट ही कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। ये है मेरा प्रॉब्लम, यानी e का पावर माइनस e का पावर माइनस 3x, ये माइनस माइनस बाहर लेके प्लस हो गया। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना, पहले मैं यही समझा दूं आपको और बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम में इंडिपेंडेंट भी बता दूंगा आपको। सेम प्रॉब्लम में इंडिपेंडेंट बता दूंगा। सो माइनस y1 ये प्लस y2 ये माइनस y1 क्यों आया, क्योंकि u की वैल्यू माइनस थी, इसलिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट माइनस e का पावर माइनस x एज इट इज इंटीग्रेशन y2wx y2wx y2 e का पावर माइनस 2x y1wx substituting all these values। ठीक है, अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हो गया तो ये डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये ऊपर जाने के बाद ये बना e का पावर 3x, e का पावर 3x का e का पावर माइनस 2x के साथ एडिशन हो गया, तो आंसर बचा e का पावर 1x। ये देखो e का पावर x इंटू e का पावर x, e का पावर माइनस 2x एज इट इज, ये ऊपर गया, e का पावर 3x बना, तो बचा क्या, e का पावर 2x इंटू e का पावर x इंटू dx। लिख दिया। अब देखो क्या, यहाँ पर e का पावर x दिख रहा है और यही e का पावर x यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे, तो कॉमन सेंस यूज करेंगे, इसका मतलब क्या, क्लियर। पुट e का पावर x इक्वल टू 2, तो e का पावर x dx इक्वल टू dt, तो e का पावर x इसकी जगह t और इन दोनों की जगह dt। क्लियर कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। t dt, e का पावर t dt, ये e का पावर 2x है, तो दिस कैन बी रिटन एज e का पावर x, e x, e का पावर x इंटू dx dt t e का पावर t, यानी देखो t e का पावर t dt, सब्स्टिट्यूशन वही, समझे। अब मैं क्लियर ऑल कर रहा हूं तो ध्यान से देखना। e का पावर t dt, t इंटू e का पावर t dt, नॉर्मल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सॉल्व करूंगा तो ये आंसर मिला और यहाँ पर ये आंसर मिला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तो e का पावर t का इंटीग्रेशन, e का पावर t एज इट इज। एक बार e का पावर t मिल गया तो वैसे का वैसा उसको लिखकर कंटिन्यू कर दिया, विषय क्लोज। e का पावर माइनस 2x लिख दिया, t इंटू e का पावर t माइनस e का पावर t, ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, t एज इट इज, e का पावर t का इंटीग्रेशन, e का पावर t माइनस बिग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ t1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t, e का पावर t, फिर से एक बार इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t, बचा क्या, e का पावर माइनस 2x, t इंटू e का पावर t माइनस e का पावर t। Substituting the value of t, we get e का पावर माइनस x, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस 2x, e का पावर x, e का पावर x, e का पावर x। समझे। अंदर लोगे, ये अंदर लोगे तो क्या होगा, एज इट इज ये चेंज हो जाएगा, विल गेट कैंसल ईच अदर, यानी फाइनल आंसर e का पावर माइनस 2x, e का पावर x। अंडरस्टूड। e का पावर माइनस 2x, e का पावर x, ये हो गया आपका आंसर पी आई। सो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जो भी जनरल सी एफ है वो सी एफ और पी आई का पी आई लिख देना। अंडरस्टूड। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, में चेंज कर रहा हूं प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम चेंज क्या कर रहा हूं, कैपिटल एक्स की जगह ये यूज करूंगा, यानी इसकी जगह साइन ई का पावर एक्स. वंस वी आर गिविंग साइन ई टू द पावर एक्स, द चेंज हैज बीन टेकन प्लेस. कहां पर? द चेंज हैज बीन टेकन प्लेस इनटू द राइट हैंड साइड. So left hand side is untouched. Once left hand side is untouched, clearly the CF is going to be the same. So मैं CF सेम रखता हूं तो ये एज इट इज रहेगा. मेरी बात ध्यान से देखना बच्चों, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा. पी आई इक्वल टू लिख दिया, यू एंड वी कैलकुलेट करने हैं. यू का फॉर्मूला लिखा, वी का फॉर्मूला लिखा, डब्ल्यू तो सेम है. आगे चलता हूं, ये सेम, ये सेम, इसकी जगह साइन ई का पावर एक्स लिखा हुआ है आपके सामने. ये सेम, ये सेम, ये सेम, साइन ई का पावर एक्स. थोड़ा सा मैं अब इसको क्लियर ऑल कर रहा हूं. ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर एक्स, साइन ई का पावर एक्स, ई का पावर माइनस 2x, ई का पावर 2x, साइन ई का पावर x, साइन बराबर है dx. यहां पर साइन टी डी टी, यहां पर t इंटू साइन टी डी टी. बात समझ में आ गई? साइन टी डी टी, t इंटू साइन टी डी टी. अब इस प्रॉब्लम को आपको एज अ होमवर्क लेना है और इसको सॉल्व करना है. अंडरस्टूड? क्लियर हो गया इतना? प्रॉब्लम सेम है, एज इट इज चलेगा. अब नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं हम उसको, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. इसका ऑपरेशन करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखोगे, ये वाला आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है VOP, और यही प्रॉब्लम मैंने यहां पर सॉल्व किया है. ठीक है, तो ये तो आपके सामने है, ई का पावर माइनस 3x है, यू कैलकुलेट किया, यू का आंसर वी कैलकुलेट किया, वगैरह 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 वगैरह. अब आप आराम से इसको देख सकते हैं. मैं प्रीवियस इस पे भी कैलकुलेट करके ले लूंगा आपको, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखोगे क्या होगा वो. ठीक है, यानी आप जरा ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं पहले इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहा हूं. CF लिख दिया, PI लिख दिया, फैक्टराइजेशन को लिख दिया, उसको सेपरेट कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन से. ई का पावर एक्स ऑपरेट कर दिया, पहले को लिखा I1, दूसरे को लिखा I2. ध्यान से देखना बच्चे. अब I1 इक्वल टू क्या, 1/d प्लस 1 ई का पावर. क्लियर कर रहा हूं जरा सा, अनडू, साथ में हो मेरे. चलो, तो I1 इक्वल टू 1/d प्लस 1 ई का पावर एक्स. तो रूल क्या कहता है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ई का पावर एक्स डी एक्स. देखो ध्यान से, ई का पावर एक्स डी एक्स. समझे ना? यानी पुट ई का पावर एक्स इक्वल टू टी इक्वल टू ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. इसका मतलब ये हो गया सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब ये हो गया आंसर. क्लियर कर रहा हूं बच्चों में. ई का पावर एक्स माइनस एक्स, ई का पावर एक्स. अब डी प्लस टू, ई का पावर माइनस 2x, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ई का पावर एक्स डी एक्स. सब्सटीट्यूशन वही, देख रहे हो ना, सब्सटीट्यूशन वही सब्सटीट्यूशन. सिर्फ आंसर क्या होगा, ई का पावर माइनस 2x टी इंटू ई का पावर टी डी टी.
e का पावर माइनस 2x t इंटू e का पावर t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 1 इंटू e का पावर t dt। यानी फाइनल आंसर क्या मिला, ये। यानी फाइनल आंसर क्या मिला, ये। यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये, यानी पी आई इक्वल टू I1 माइनस R2 लिखने के बाद देखो ये बच्चों दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस। फाइनल आंसर e का पावर माइनस 2x e का पावर x। दिस इज बाय जनरल मेथड। दिस इज बाय जनरल मेथड। अब सी व्हाट इज हैपनिंग। हम प्रीवियस प्रॉब्लम में इसको क्लियर कर चुके हैं। जरा देखो ये क्या है, e का पावर माइनस x, ये। और जरा देखो ये क्या है, ये। अब आगे इसमें चलता हूं, ये क्या है क्लियर हो। नॉर्मल इक्वेशन लिखा, C1 CF लिखा, y1 y2 आइडेंटिफाई किया, W निकाला, W का आंसर आया माइनस e का पावर 3x माइनस 3x। PI लिखा, U कैलकुलेट किया, U का आंसर आया y2 अपॉन W इंटू एक्स dx वगैरह लिख दिया। फाइनल आंसर मिला ये। बच्चों ध्यान से देखना, ये e का पावर x इंटीग्रेशन के अंदर e का पावर x इंटू dx। लेकिन रूल क्या कहता है, उसको y1 से मल्टीप्लाई करो। y1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला, ये मिला। ये मिला ना आंसर। अब जरा देखो आंसर क्या मिला, ये e का पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन e का पावर x e का पावर x dx e का पावर x e का पावर x dx। मतलब ये uy1 दूसरा तीसरा कुछ नहीं, क्या है, i1 है। समझे, ये uy1 दूसरा तीसरा कुछ नहीं, क्या है, i1 है। अब मैं v की तरफ जाता हूं, v इक्वल टू फार्मूला लिखा, फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद माइनस e का पावर माइनस 3x ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद क्या बचा, ये बचा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों, ये ऐसा I2 नहीं है। जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, y2 इंटू v इक्वल टू माइनस I2। प्रिंट मिस्टेक है, करेक्शन है थोड़ा सा। y2 इंटू v इक्वल टू, देखो जरा सा, y2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो e का पावर माइनस 2x आएगा। ध्यान से देखना, e का पावर माइनस 2x, e का पावर 2x e का पावर x dx, e का पावर 2x e का पावर x dx। यानी ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, माइनस I2 है। इसका मतलब PI क्या है, इसकी जगह I1, इसकी जगह माइनस I2। यानी आंसर तो यही बना ना। अब छोटी सी बात ये है बच्चों, ये अगर समझ में आ गया होगा तो क्लियर करता हूं, ध्यान से देखना। ये दोनों मेथड कैसी है, वन ऑन द सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस मेथड में हम रूल के साथ चलते हैं, इस मेथड में भी हम रूल के साथ चलते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर अलग है। मेथड वन एंड द सेम है, निकालना I1 I2 यानी निकालना वही है, वही प्रॉब्लम हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेथडोलॉजी क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है ना, प्रेजेंटेशन अलग है। ऐसा समझ के चलो कि ये दोनों ही वही सब्जियां हैं जो घर में भी बनती है और होटल में भी बनती है, सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन अलग है और इसका प्रेजेंटेशन नॉर्मल है, जैसा घर में माँ बनाती। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन अलग करते हैं, इसलिए इसको अलग मेथड दिया गया है। बेसिकली वन एंड द सेम, मेथड सेम ही है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो आगे जाता हूं, समझने के लिए और आसान जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं।
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। बड़ा आसान और बड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है बच्चों, ये बहुत मजा आएगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक बार ये सॉल्व हो गया तो बहुत सी जनता इसके साथ फ्री में आती है। बता दूंगा, देखो कैसे। सी एफ कैलकुलेट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ये रूट हुए प्लस और माइनस आए, एक बार प्लस और माइनस आई लिख दिया कि C1 cos AX प्लस C2 sin AX, लिख दिया कि Pi इक्वल टू U इंटू Y1 V इंटू Y2, U की वैल्यू V की वैल्यू W की वैल्यू Y1 Y2 Y1 डैश Y2 डैश इक्वेटिंग विद दिस, क्या मिला क्लियर कर रहा हूं, W इक्वल टू cos AX sin AX minus A sin AX A cos AX A इंटू cos स्क्वायर AX sin स्क्वायर AX W इक्वल टू A, समझे, W इक्वल टू A। एक बार A क्लियर हो गया तो देखो क्या बचा, Pi इक्वल टू माइनस वाई cos AX इंटीग्रेशन sin AX अपॉन A इंटू sec AX इंटू dx प्लस y2 sin AX इंटीग्रेशन cos AX अपॉन A इंटू sec AX dx। इतना क्लियर हो जाने के बाद ध्यान से देखना ये क्या है, सेक है, सेक मतलब 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस मतलब साइन बाय कॉस मतलब tan, ए शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया, ए शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया, क्लियर कर रहा हूं। साइन सेक tan, कॉस सेक, एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल, कॉस एक्स और सेक मतलब 1 बाय कॉस एक्स, यानी बचेगा 1, यानी tan x log ऑफ sec x इंटीग्रेशन sin ax अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ x। तो फाइनल आंसर क्या बना, ए माइनस ए स्क्वायर 1 बाय ए स्क्वायर cos ax log ऑफ sec ax x बाय ए इंटू साइन ए एक्स। अब ये हो गया, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिख दो। अब क्या क्या यूनिक है, कौन सी जनता इसके पीछे आती है वो भी बता देता हूँ, क्लियर हो, यहां पर 2 और यहां पर भी 2 लिख दो बच्चों। तो क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन वाई सेक 2x, कुछ भी नहीं, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, आगे आंसर 2, पूरा प्रॉब्लम 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 बाय 4 cos ax cos 2x log ऑफ मॉड ऑफ, पता है ना log ऑफ sec x, समझ में आया ना, sec x क्या होता है, cos x क्या होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसको, तो दोनों वे से हम इसको लिख सकते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, माइनस अंदर ले लिया है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालिए, चीज समझ में आ जाएगी। अब क्या, log ऑफ sec x log ऑफ cos 2x x by 2 sin 2x, यही फॉर्मूला आप 2 के लिए कर सकते हो, 3 के लिए कर सकते हो, 4 के लिए कर सकते हो, चाहे जितने बार कर सकते हो, समझे ना, इसमें कोई अड़चन नहीं, आराम से इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिएगा इसको ध्यान से, इसी बेसिस पे आपके प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं। यहां पर रुकता हूं, नेक्स्ट इसमें कॉचीज एंड लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट।